Good morning, everyone. This is Akshay Malaya. Today is 21 March 2020, and today I am presenting the lecture on the environmental pollution. So, environmental pollution can be defined as any undesirable change in physical, chemical, biological characteristics of the component of the environment, which consist of air, water, soil, and which also called harmful effects on various forms of life or property. The term pollution can be defined as influence of any substance causing nuisance, harmful effects, and uneasiness to the organisms. The pollutant can consist of any substance causing nuisance and harmful effects or uneasiness to the organism. That particular substance may be called as a pollutant. So what are the types of pollution? The types of pollution, as I tell, they are water pollution, air pollution, land pollution, and noise pollution. So when we talk about the water pollution, so this is a messy picture of the water pollution. Water pollution, this is the messy picture of the water pollution in which there are solid waste suspending here. Next is the water pollution can be defined as alteration in physical, chemical and biological characteristic of water through natural and human activities. So fresh water present on the earth is put to many uses. It is used for drinking, domestic and municipal purposes. So agriculture, irrigation, industry, navigation and recreation led to the formation of the water pollution and becomes contaminated is also called as the wastewater. Sources of water pollution consist as man-made and it may also occur naturally by addition of soil particles through erosion, animal waste, leaching of minerals from rocks. The sources of water pollution also can be classified मतलब there are different sources of water pollution जैसे municipal waste water, industrial waste, inorganic pollutants, organic pollutants, agricultural waste, marine pollution and thermal pollution. So on today's 21 March 2020, I Akshay Malaya is presenting on revision slide of the water pollution and various types of pollution. So the sources of water pollution can be classified as municipal waste water, industrial waste, inorganic pollutants, organic pollutants, agricultural waste, marine pollution and thermal pollution. So municipal waste water is this water which is very much dirty and it consists of various kind of garbage and organic matter and inorganic matter and various kind of plastic sewage waste in it. So this is the major cause of the water pollution. So when we come up to the industrial waste, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का. इस वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बॉडीज से डिस्चार्ज होती हैं. दीज इंडस्ट्रीज आर केमिकल, मेटलर्जिकल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री हैं. तो ये हाईली टॉक्सिक हैं किसके लिए? लिविंग बींग्स के लिए. तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का वाटर है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल वाटर है. इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड्स और अल्कलीस का भी प्रेजेंटेशन रहता है जिससे कारण वाटर बहुत ज़्यादा क्या होता है? पॉल्यूट होता है. फिर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आते हैं कि इंक्लूड ऑयल, फैट्स, फिनॉल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड, ग्रीस एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट. फिर जब हम एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स भी रहते हैं जो एसेंशियल फॉर द प्रेजेंट डे हाई यील्डिंग क्रॉप्स के लिए रहते हैं. इसमें ऑयल का भी यूज़ होता है जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इट्स बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. इसमें मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रहते हैं. एक्सेस फर्टिलाइजर्स में रीच द ग्राउंड करता है वाटर के जो कि रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में रन ऑफ करता है और ड्रेनेज कॉज करता है. मैराइन पोल्यूशन भी एक मेजर कॉज है पोल्यूशन का जिसमें ओशन आर फाइनल सिंक ऑन द नेचुरल man-made pollutants, river discharge their pollutant in the sea, and the sewage and garbage of coastal cities are also dumped into the sea. तो ये इंक्लूड करते हैं डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, ग्रीस, डिटर्जेंट और रेडियो एक्टिव वेस्ट भी इससे डिस्चार्ज होता है फ्रॉम शिप्स से. फिर थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द राइज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो ये टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज करने से थर्मल पोल्यूशन कॉज्ड होता है. द पावर जनरेटिंग प्लांट यूज वाटर एज कूलेंट्स and release hot water into the original source. So sudden rise in temperature kills fish and other aquatic animals भी. फिर एयर पोल्यूशन जो कि सबसे मेजर कॉज है पोल्यूशन का वो किससे ऑकर होता है?
फैक्ट्रीज से ऑकर होता है एज अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन किसका है, केमिकल्स का, पार्टिकुलेट मैटर, बायोलॉजिकल मटेरियल्स का हार्म और डिस्कम्फर्ट करते ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं एटमॉस्फियर में एंड कॉज हार्म टू द ह्यूमंस इन द एनवायरनमेंट। तो द सब्सटेंस इन द एयर डेट कैन कॉज ह्यूमन हार्म टू द ह्यूमंस इन द एनवायरनमेंट, और ये आल्सो क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट। तो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर कॉज, दिस हैपन बिकॉज डिफॉरेस्टेशन, फॉसल फ्यूल बर्निंग। सल्फर डाइऑक्साइड भी मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो सल्फर ऑक्साइड्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है टू द ह्यूमंस एट अ हाई कंसंट्रेशन। सल्फर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। So consequences of air pollution is CO2 is a good transmitter of sunlight, ठीक है, but it also partly restrict infrared radiation going back from the earth into the space, which produces the soil called greenhouse effect that prevents a drastic cooling on the earth during the night. So CO2 in the atmosphere also cause the global warming. तो ये लैंड पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इज अ टॉप ग्रेड पोल्यूशन। Land pollution is the demolition of earth land surfaces often caused by the human activities or misuse of the land resources. तो urbanization और industrialization भी क्या है, मेजर कॉज ऑफ क्या है, लैंड पोल्यूशन है। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, फोर मेन कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी मेन कॉजेज हैं लैंड पोल्यूशन की। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बिल्डिंग टेक अप रिसोर्सेज एंड लैंड, द ट्रीज आर चॉप्ड डाउन और मेक बिल्डिंग्स, टेक्स अवे द प्लेसेस ऑफ एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू लिव, ये भी कंस्ट्रक्शन के मेजर कॉजेज हैं। एज देयर आर मोर एंड मोर पीपल इनहेबिटिंग द अर्थ, तो फूड और हायर डिमांड है, सो फॉरेस्ट आर चॉप डाउन एंड टर्न इनटू फार्मलैंड हो जाते हैं। फिर एडिशन हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, एनिमल मैन्योर भी वॉश्ड हो जाता है सॉइल से और पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। जब हम डोमेस्टिक वेट की बात करते हैं, टन ऑफ डोमेस्टिक वेट डंप्ड होता है रोज, or some waste from homes, offices and industries can be recycled once in incinerators. There is still a lot of garbage such as refrigerators, washing machines that are dumped in landfills simply they cannot be used anyway or recycled. जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं तो प्लास्टिक फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटी, लार्ज एनिमल फार्म्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मेटल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और अदर हैवी इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, लैंड पोल्यूशन में। And noise pollution is also caused by the speaker. So these are some kind of pollution cause होते हैं। तो noise pollution excessive होता है, displeasing होता है, human animal के द्वारा cause होता है और ये balance of human life को disrupt करता है। तो sound become undesirable when it disturbs the normal activity of the working, sleeping and during conversation. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट करता है कि नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग, ये एक मेजर थ्रेट है किसका, ह्यूमन वेलबींग है। सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेजर सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का, अर्बन एरियाज में बिल्डिंग्स, हाईवेज एंड स्ट्रीट्स कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज करते हैं ड्यू टू द यूसेज ऑफ एयर कंप्रेसर, बुलडोजर्स, लोडर्स, डंप ट्रंक्स, पेवमेंट ब्रेकर्स के कारण। इंडस्ट्रियल नॉइज ऑल्सो ऐड करता है ऑलरेडी अनफेवरेबल स्टेट ऑफ नॉइज पोल्यूशन को। लाउड स्पीकर, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर, फैंस एंड वैक्यूम क्लीनर्स भी रिस्पॉन्सिबल है एग्जिस्टिंग नॉइज पोल्यूशन की। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द यूएसईपीए देयर आर डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन द नॉइज एंड द हेल्थ के। नॉइज पोल्यूशन कैन डैमेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, स्लीप डिसरप्शन, हियरिंग लॉस एंड प्रोडक्टिविटी लॉस आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नॉइज पोल्यूशन होती हैं। इट कैन कॉज मेमोरी लॉस एंड सीवियर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। तो सोल्यूशन फॉर द नॉइज पोल्यूशन क्या है कि प्लांटिंग बुशेस और ट्रीज से भी हमारा इफेक्टिव सोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन के लिए। रेगुलर सर्विसिंग और ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स भी रेगुलर सर्विसेज है नॉइज पोल्यूशन के लिए। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुड बी टेकन टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ नाइट पोल्यूशन। तो वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग्स इन ईयर मफ्स फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। सो दीज आर द फॉर द सर्टेन सोल्यूशन फॉर नॉइज पोल्यूशन। ट्रीज प्लांट और बुशेस प्लांट करने से भी बहुत हद तक नॉइज पोल्यूशन कम हो जाता है और रेगुलर सर्विसिंग और ऑटोमोबाइल से भी नॉइज पोल्यूशन बहुत तक कम कर। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाने से भी, पीपल को पब्लिकली एजुकेट करने से भी नॉइज पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है। तो वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स फॉर देयर हियरिंग प्रोटेक्शन। सो दीज आर सर्टेन effects of the noise pollution and various types of pollution.
हाई ब्लड प्रेशर कॉज होता है नॉइस पॉल्यूशन से, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस कॉज होती है, सीवियर डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स भी होते हैं नॉइस पॉल्यूशन से. ओके, so this is our revision slide for the noise pollution. Okay, thank you.